Good morning, students. Today we are going to study an important topic, that is question tag. It is very important and very easy also. You have to focus only few important things. Firstly, we have to know that what is question tag. What is question tag? A question tag is a small question at the end of a statement. Means in a question tag we ask a question, small questions at the ending of the statement or the sentence. Question tag are used when asking for agreement or confirmation. Means he wanted to know that you are ready or not, you are agree or not. So in question tag it is a abbreviation form. What is the abbreviation form? Means a short form of the verb and not. Means that it depend on the sentence. If your sentence or the statement is in a positive or the affirmative, your question tag will be in a negative. If your statement or the sentence in a negative, your question tag will be in positive. So that it depend on the sentence. Sentence is a positive, question tag will be negative. Sentence is a negative, question tag will be positive. But there is also exception, we will discuss later. Okay, let's know a positive statement plus a negative question tag. As I told you, means if the statement or the sentence in a positive, at that time the question tag will be in negative. Let's watch few examples. You are a student. Okay, you are a student. Its question tag will be, this one is a positive sentence. As I told you, if the sentence is a positive, the question tag will be in a negative. You are a student, it is a positive sentence. Its question tag will be aren't you. Okay, it is the abbreviation form. What? It is the abbreviation form of are not, short form. Are not called aren't. At last there will be you. Mary isn't a teacher. Okay, as I told you earlier, if the statement is a positive, question tag will be negative, and if the statement is a negative, at that time question tag will be positive. So Mary isn't a teacher, question tag is she. One more things, if there is a noun, at that time during the question tag we have to change, we have to use a pronoun form. Okay, as you are watching the example, Mary is a lady, so I use here, what I used she in place of Mary. So in a statement, if the subject in a noun form, at that time during the question tag we have to use in place of noun what's pronoun. It's clear? तो ये चीजें आपको ध्यान देना है कि ये सारी चीजें, अगर क्वेश्चन टैग आपका स्टेटमेंट जो है पॉजिटिव होगा तो क्वेश्चन टैग निगेटिव में होगा, अगर स्टेटमेंट आपका निगेटिव होगा तो क्वेश्चन टैग पॉजिटिव में होगा. और मैंने आपको बताया कि यहाँ पर अगर स्टेटमेंट में कोई नाउन वर्ड आया है तो हम जब इसका क्वेश्चन टैग बनाएंगे, क्योंकि क्वेश्चन टैग इज द एब्रिविएशन फॉर्म, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, उसकी जगह प्रोनाउन यूज करेंगे. और देखो, इट इज ओनली आस्किंग यू आर एग्री और नॉट. सपोज दैट मैरी इजंट अ टीचर, मीन्स वो बताना चाहता, पूछना चाहता है कि नहीं है, तो इज सी
और दूसरी चीज क्या है कि देखो आप लोग क्या करते हो, थोड़ी सी मिस्टेक कर देते हो। क्वेश्चन टैग के जब आपको बनाना होता है तो आप क्या करते हो कि पूरा सेंटेंस नहीं लिखते हो। इन योर एग्जामिनेशन आपको क्या रहेगा, ऐसा सेंटेंस दिया रहेगा, यू आर अ स्टूडेंट। ओके, यू आर स्टूडेंट, ये आपका एक स्टेटमेंट है, एक सेंटेंस है, तो एट लास्ट देयर विल बी फुल स्टॉप, वहां पर क्या रहेगा, फुल स्टॉप रहेगा। लेकिन जब आप क्वेश्चन टैग बनाओगे तो सिर्फ इतना ही नहीं लिखना रहेगा, यू हैव टू राइट द सेंटेंस और द स्टेटमेंट आल्सो क्वेश्चन टैग इंक्लूडिंग। अब आपको देखो यहां पर यू आर स्टूडेंट, फिर क्या लगाना पड़ेगा, कॉमा लगाना पड़ेगा इन प्लेस ऑफ द फुल स्टॉप, उसके बाद तुरंत आपको ये लिख देना होगा। क्लियर है? तो जैसे देखो यहां पर है शी इज ब्यूटीफुल, शी इज अ ब्यूटीफुल। अब आपको ऐसा सेंटेंस दिया रहेगा, अब आपको बोलेगा ऐड द क्वेश्चन टैग, क्वेश्चन टैग आपको बनाना है। तो आप क्या करोगे, सिर्फ जब आप अपने आप में कॉपी में बनाओगे तो यहां पर फुल स्टॉप हटा करके यहां से लगा दोगे। अब ये देखो दिस वन इज अ पॉजिटिव सेंटेंस, क्वेश्चन टैग विल इन नेगेटिव मीन्स इजंट सी, एट लास्ट देयर इज अ क्वेश्चन मार्क्स। ओके, तो ये आपको ये लगाना कंपलसरी है और यहां पर सेंटेंस लिखना कंपलसरी है, उसके बाद कॉमा लगाएंगे। अब आप वहां पर जो भी वर्ब आई रहेगी उस वर्ब के साथ इंक्लूड करना है आपको। अगर ये पॉजिटिव रहेगा तो नॉट, अगर नॉट ये निगेटिव रहेगा तो यू हैवंट ऐड द नॉट हियर। ओके, एक इसका एक्सेप्शनल केस होती है कि देखो एक्सेप्शनल केस क्या है कि जैसे यहां पर लिखा है आई एम अ टीचर, आई एम अ टीचर, यू हैव टू ऐड द क्वेश्चन टैग। तो ध्यान देना कि जब हम क्वेश्चन टैग बनाएंगे तो क्वेश्चन टैग में कभी भी एम एंड आई नहीं होता है, एम एंड आई नहीं होता है, उसकी जगह क्या हो जाता है, अरंट आई होता है। क्या होता है, अरंट, अरंट आई। तो यू हैव टू माइंड इट कि कभी भी आई एम का जब क्वेश्चन टैग बनाना होगा तो वहां पर एमंट आई ना होकर के क्या हो जाएगा, अरंट आई हो जाएगा। दिस वन इज अ एक्सेप्शनल केस, ये इसका क्या है, अपवादित रूप है। तो यहां पर आइए, लेट्स वाज हाउ टू चेंज मीन्स हाउ टू ऐड अ क्वेश्चन टैग। अगर क्या रहेगा तो देखो इसका हमको क्या जानना रहता है, एब्रीविएशन फॉर्म जानना होता है कि जैसे यहां पर क्या है, यू आर अ स्टूडेंट, तो यहां पर क्या हो गया, अरंट यू। क्लियर है? मैंने आपको बताया ना, एज आई टोल्ड यू, यू हैव टू यूज द सब्जेक्ट इफ दैट इज अ प्रोनाउन, if that is a noun you have to use the pronoun in place of that noun। तो यहां पर आपने देखा you are a student, वहां पर क्या हो गया, aren't you। उसी तरीके से he is a very busy, when you have to add the question tag at that time there will be he is very busy means isn't he, at last there is a full stop। he was happy, at that time there will be wasn't he, at last there is a question marks। now they were surprised, तो here will be weren't they। okay, at last there is a question marks। you speak English, okay, it is a very important, there is a no helping verb। अभी तक आपने देखा कि यहां पर हेल्पिंग वर्ब दिया था, बट हियर इज अ नो हेल्पिंग वर्ब। एट दैट टाइम इफ देयर इज अ नो हेल्पिंग वर्ब तो यू हैव टू गेस द टेंस। आपको ये गेस करना है कि कौन सा टेंस है। मीन्स अगर वहां पर हेल्पिंग वर्ब नहीं दिया है तो दो ही ऐसे टेंस होते हैं जिसमें हेल्पिंग वर्ब पॉजिटिव सेंटेंस में नहीं होता है, दैट इज द सिंपल प्रेजेंट एंड द सिंपल पास्ट। तो बट वहां पर हम इजिली वी कैन रिकॉग्नाइज इट बाई इफ दैट इज अ पॉजिटिव ऑफ द सिंपल पास्ट टेंस देयर विल बी V2 ऑफ द वर्ब। अगर पास्ट टेंस में है, सेंटेंस जो है पास्ट टेंस में है, तो हम क्या करते हैं, अफर्मेटिव सेंटेंस में V2 यूज करते हैं। इफ दैट इज इन ए प्रेजेंट टेंस ऑफ द
प्रेजेंट टेंस का पॉजिटिव सेंटेंस हो एट दैट टाइम क्या करते हैं, इफ द सब्जेक्ट इज अ सिंगुलर वी ऐड SRES विथ अ मेन वर्ब, इफ द सब्जेक्ट इज अ प्लूरल वी डोंट यूज द SRES विथ अ वर्ब। तो यहां पर देखो यू स्पीक इंग्लिश, तो दिस वन देर इज नो एडिंग ऑफ द SRES बिकॉज सब्जेक्ट इज अ प्लूरल एंड देर इज ऑल्सो नो V2 ऑफ द वर्ब, क्योंकि अगर V2 होता तो क्या होता, स्पीक स्पोक होता। तो यहां पर क्या है, सिंपल प्रेजेंट है, तो क्या हो जाएगा, जब इसका क्वेश्चन टैग बनाएंगे तो क्या हो जाएगा, डोंट यू। क्लियर, यू स्पीक इंग्लिश, तो इसका आपका क्या हो गया, डोंट यू। ही स्टडीज स्पेनिश, तो इसका क्या हो जाएगा, डजंट ही। और यहां पर ध्यान देना है, यहां पर कैपिटल नहीं स्मॉल लेटर ही यूज करना है। और लास्ट में अब यू स्टडीड, देखो यहां पर स्टडीड दिया, इट मींस V2 दिया है। ये 3 ऐसे हैं जिसमें आपको हेल्पिंग वर्ब क्या किया है, हेल्पिंग वर्ब नहीं दिया है, ये 3 के ऐसे। तो हेल्पिंग वर्ब नहीं दिया है तो हमको यहां पर रिकॉग्नाइज करना है कि कौन सा टेंस है ये। तो देखो स्टडीड इज द V2 ऑफ द वर्ब, तो V2 ऑफ द वर्ब कौन से टेंस में यूज करते हैं, दैट इज सिंपल पास्ट। तो सिंपल पास्ट में हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, डिडंट यू, क्या हो जाएगा, डिडंट यू, एट लास्ट देयर इज अ क्वेश्चन मार्क्स। अब देखो यहां पर यू हैव है, तो हैव का क्या हो जाएगा, हैवेंट हो जाएगा। हैव का क्या हो जाएगा, हैवेंट हो जाएगा, हैवेंट यू होगा। यू हैड का हैडेंट हो जाएगा, हैडेंट यू होगा। यू विल का ओंट हो जाएगा। यहां पर इस तरीके से आपने देखा होगा, ऐसा दिया रहता है ओंट यू। विल नॉट का क्वेश्चन टैग क्या होता है, ओंट, एब्रीविएशन फॉर्म विल नॉट का क्या होता है, ओंट। उसी तरीके से कैन का कांट, कैन का क्या होता है, कांट। और कुड का होगा तो कुडंट, कुड का कुडंट, एट लास्ट यू। उसी तरीके से अगर मस्ट होगा तो मसंट, क्लियर, मस्ट होगा तो मसंट, शैल नॉट होगा तो संट, शुड नॉट होगा तो शुडंट। तो ये आपने देखा कि ये बहुत इंपॉर्टेंट है, हमको ये चीजें याद करना लेना होता है। कि जैसे आपको बता ना, सिंपली आपको याद कर लेना है कि अगर ये पॉजिटिव सेंटेंस रहेगा तो आर नॉट का आरंट, इज नॉट का इजंट, वाज नॉट का वजंट, वर नॉट का वरंट। यहां पर डजंट, डोंट, डिडंट, हैवंट, हैडेंट, ओंट, कांट, कुडंट, शुडंट, इस तरीके से मस्ट नॉट का मसंट। इस तरीके से आपको क्या करना है, क्वेश्चन टैग में कन्वर्ट करना होगा। अगर ध्यान देना, मैंने आपको यही चीज बताया कि यू हैव टू फर्स्टली क्लियर दैट द स्टेटमेंट इन अ पॉजिटिव और द नेगेटिव। इफ द स्टेटमेंट इज अ पॉजिटिव you have to add the question tag in a negative. If statement is a negative, you have to add the question tag in a positive. It's a clear? Now we are going to study the imperative types of sentence. If there is imperative types of sentence, then how we add the question tag. So student, as I told you, if the sentence or the statement is in imperative, or that is imperative types of statement or the sentence, then how we add the question tag, it is a very important, because as you know that all imperative types of sentences, tense is a present tense, okay, and there is no given subject, सब्जेक्ट भी नहीं रहता है। तो मैंने आपको कई बार बताया है कि जो इंपरेटिव टाइप्स ऑफ सेंटेंस होते हैं हमेशा उसका सब्जेक्ट क्या होता है, यू होता है, एंड इट इज अंडरस्टूड। ये क्या होता है, छिपा रहता है, बिकॉज इंपरेटिव टाइप्स ऑफ सेंटेंस, सपोज दैट टू बॉयज आर डिस्कसिंग टू ईच अदर, एट द टाइम वो ऐसा नहीं बोलते तुम बैठ जाओ, यू सिट डाउन, ऐसा नहीं बोलते हैं, ओनली सिट डाउन।
इट मीन्स हु सिट डाउन, यू सिट डाउन, तो देयर इज यू इज अंडरस्टूड। तो जब हम क्या करेंगे, इसका हम क्वेश्चन टैग बनाएंगे। तो अभी हमने आपको बताया क्या कि क्वेश्चन टैग में क्या होता है, जो इसका स्ट्रक्चर बनता है क्वेश्चन टैग का, मतलब सेंटेंस इस टाइप रहता है, सब्जेक्ट रहता था, हेल्पिंग वर्ब रहती थी, और आपका क्या रहता था, मान लीजिए मेन वर्ब हो या ना हो, तो मेन वर्ब हो या ना हो उसके ऊपर नहीं डिपेंड करता। फिर क्या रहता है, ऑब्जेक्ट रहता था, ठीक, फिर इस तरीके से रहता था। तो हम जब इसका क्वेश्चन टैग बनाते थे तो हमको सिर्फ क्या जरूरत थी, हेल्पिंग वर्ब प्लस क्या, सब्जेक्ट, एट लास्ट देयर इज अ क्वेश्चन मार्क्स। ये हमारा स्ट्रक्चर रहता था। जैसे अभी हमने पहले ही सॉल्व किया था कि यू आर लकी, ऐसा सेंटेंस है। अब इसका क्वेश्चन टैग ऐड करना है यू आर लकी का। तो देखो यहां पर है ना, सब्जेक्ट हो गया, हेल्पिंग वर्ब हो गई, ये एक्सिलरी वर्ब यहां पर वर्क कर रहा है, लकी यहां पर ऑब्जेक्ट नहीं है, तो ये सब है, यू आर लकी हुआ, इस फॉर्म में हो गया। हमको जब क्वेश्चन टैग करना होता है तो इस फॉर्म में लाना होता है। तो यहां पर क्या हो जाएगा, हेल्पिंग वर्ब, या ये क्या है, आर, तो इसका क्वेश्चन टैग क्या बनेगा, आरंट। हमने बताया था इफ दिस वन इज इन पॉजिटिव तो क्वेश्चन टैग बनाते समय निगेटिव हो जाएगा। तो यहां पर क्या हो जाएगा, आरंट यू, आया कि नहीं आया, एट लास्ट देयर इज अ क्वेश्चन मार्क्स। तो ये फॉर्म हो गया किसका, क्वेश्चन टैग का, जब इस तरीके के रहता है। लेकिन जब ये यहां पर ये रहेगा इंपरेटिव टाइप्स ऑफ सेंटेंस, तो देयर इज नो सब्जेक्ट, सब्जेक्ट तो दिया नहीं रहता है। तो हम क्या करेंगे कि वहां पर यू हमेशा अंडरस्टूड होता है। तो जैसे यहां पर दिया है ओपन द विंडो, ये लगभग लोग पूछते हैं कि ओपन द विंडो, इसका क्वेश्चन टैग क्या होगा। तो यहां पर देखो, इसका हमने बताया एक सब्जेक्ट यू होता है, अंडरस्टूड होता है। तो यहां पर ये, और इसका टेंस जैसे क्या होता है, सिंपली प्रेजेंट टेंस होता है। लेकिन जब इसका क्वेश्चन टैग बनाएंगे तो उसके साथ विल यूज करेंगे। क्लियर है, इसका क्या हो जाएगा, विल यू। तो विल यू लिखे या ओंट यू लिखे, ओंट मीन्स विल नॉट यू। क्लियर है, ऐसे ही टेक केयर, तो विल यू या ओंट यू, हैव अ सीट, ओंट यू। क्लियर है, तो क्लोज द डोर, वुड यू। अब एक चीज हमेशा ध्यान देना, ये मैंने आपको नोट्स करके यहां पर लिख दिया है, ये इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग्स। नेगेटिव कमांड और रिक्वेस्ट ऑलवेज टेक्स पॉजिटिव क्वेश्चन टैग विथ देम। मतलब जो निगेटिव सेंटेंस होगा, इफ द स्टेटमेंट और द सेंटेंस ऑफ इंपरेटिव सेंटेंस इज अ नेगेटिव, it always use the positive question tag. Clear, if the statement or the sentence in a positive of the imperative types of sentence, अगर imperative types of sentence का जो sentence या statement है that is a positive, तो we means it takes either positive or the negative, that's depend on you। वो अगर sentence क्या रहेगा, positive रहेगा, तो वो आपके ऊपर डिपेंड करता है, दैट इज डिपेंड ऑन यू, कि आप उसका पॉजिटिव में बना रहे हो कि निगेटिव में। क्लियर है, और ऐसे सिंपली तो क्या होता है, जैसे हम क्या करते हैं, जब अपने बातों पर जोर डालते हैं, एम्फेसिस करते हैं, तो वहां पर तब हम निगेटिव में करते हैं। इट्स क्लियर। अगर सेंटेंस सिंपली रहता है, ये भी बहुत कभी कभी लोग पूछते हैं कि ऐसा तो नहीं है कि हम चाहे विल यूज करें या विल नॉट यूज करें, ओंट यूज करें। जैसे कि आपको पहले बताया गया कि अगर स्टेटमेंट पॉजिटिव होगा तो क्वेश्चन टैग निगेटिव में बनेगा। तो कभी कभी लोगों को ऐसा क्वेश्चन रहता है कि सर हम यहां पर तो फॉलो नहीं कर रहे हैं कि ओंट यू हमारा आना चाहिए, लेकिन हमने तो विल बी यू लिखा है। तो ध्यान देना, इंपरेटिव सेंटेंस में क्या होता है, अगर आप अपनी बातों पर जोर दे रहे हो तो वहां पर आप हमेशा क्या करोगे, निगेटिव रखोगे। अगर जोर नहीं दे रहे हो तो क्या रहेगा, आपका पॉजिटिव रहेगा। क्लियर है, तो इस तरीके से हो गया। यहां पर देखिए डोंट फॉरगेट, फिर क्या हो गया, अब ये देखो डोंट फॉरगेट आया ना, तो हमेशा आपको हमने क्या लिखा, इसीलिए नोट करके आपको लिखा दिया है, निगेटिव कमांड और रिक्वेस्ट ऑलवेज टेक्स पॉजिटिव क्वेश्चन टैग। तो दिस वन इज द निगेटिव,
so its question tag will be positive, will you. Don't open the window, will you. अब यहां पर देखो open the window will you भी होगा और won't you भी होगा, तो यहां पर ये तो निगेटिव था तो ये पॉजिटिव बन गया, लेकिन यहां पर ये पॉजिटिव था तो निगेटिव बनना चाहिए, लेकिन इसका पॉजिटिव भी है, तो क्यों है हमने आपको बता दिया। आइए इसके कुछ स्पेशल केसेस देखते हैं कि कुछ ऐसे स्पेशल केसेस होते हैं जो बहुत सारे लोगों के अंदर, मान लीजिए ये दिमाग में क्वेश्चन आते भी हैं और ये इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग्स। सपोज दैट जैसे आपका क्या अभी तक रहता था कि जैसे मान लीजिए आता था हैव, तो आप क्या करते थे, हैवेंट में कन्वर्ट कर देते थे। क्लियर है, हैव को किस में कन्वर्ट कर देते थे, हैवेंट में। मान लीजिए अगर हैव बीन आ गया तो क्या करोगे, हैव बीन का क्वेश्चन टैग क्या होगा, तो हमेशा ध्यान देना उसी के विषय में हम लोग यहाँ पर वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट दिस टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस। तो अभी मैंने आपको एक्सेप्शनल केस बताया था, जैसे आई एम राइट, तो इसका एमेंट आई होना चाहिए, क्या होना चाहिए, एमेंट आई होना चाहिए, लेकिन हमेशा ध्यान देना ये एक्सेप्शनल केस है कि आई एम राइट का क्वेश्चन टैग अमेंट आई होना चाहिए, लेकिन नहीं होगा, इसका क्या होगा, अरंट आई। इट इज अ एक्सेप्शनल केस, अपवादित होता है और लोग पूछते भी हैं कि, और देखो यू हैव टू गो, अब यहां पर हैव आया है, क्लियर है, यहां पर क्या आया है, हैव आया है, लेकिन इसका क्वेश्चन टैग क्या होगा, डोंट यू। क्लियर है, यू हैव टू गो मतलब आपको जाना है, तो इसका क्या हुआ, डोंट यू मतलब क्या आपको नहीं जाना है। तो हमने आपको बताया था क्या कि ये जो तरीके सेंटेंस होते हैं वो प्रेजेंट में होता है, आई हैव बीन आंसरिंग, देखो अभी मैंने आपको डिस्कस किया था, तो इसका क्या हो जाएगा, हैवेंट आई। अब लेट्स गो, व्हेन वी आर डिस्कसिंग अबाउट द नरेशन, व्हेन वी आर डिस्कसिंग अबाउट द नरेशन, जब हम लोग क्या कर रहे थे, नरेशन के विषय में डिस्कस कर रहे थे, means when we were changing the let's types of sentence into indirect sentence, at that time I told you कि जब कभी भी लेटस वाले वाक्य होते हैं, लेट्स वाले, तो इसमें दो चीजें होती हैं, लेट और अस। तो हमने आपको बताया था एट दैट टाइम आई टोल्ड यू कि लेट को कन्वर्ट किस में कर देते हैं, शुड में, लेट को कन्वर्ट किस में करते हैं, शुड में, और अस को नॉमिनेटिव केस वी अथवा किस में कन्वर्ट करते हैं, दे में। क्लियर है, तो अब यहां पर देखो जब इसका क्वेश्चन टैग बनाना होगा ना, तो हम क्या करेंगे, अस को नॉमिनेटिव फॉर्म में कन्वर्ट कर देंगे, वी हो जाएगा, और लेट को कन्वर्ट कर देंगे किसमें, शैल में, इसका क्या हो जाएगा, लेट्स गो का शैल वी। क्लियर, जब कभी भी इस तरीके का सेंटेंस आपको मिले, लेट्स गो या लेट मी गो, ठीक है, तो इस तरीके का हमेशा ध्यान देना, इस तरीके से हो जाएगा। तो ही यहां पर देखो इस तरीके से भी सेंटेंस आते हैं आपको, तो आपको ये समझना है कि यहां पर क्या है, तो यहां पर हैड है, ही हैड बेटर डू इट, तो यहां पर क्या हो जाएगा, हैडंट ही। अब देखो नथिंग केम इन द पास्ट, नथिंग केम इन द पास्ट, यहां पर क्या है, दिस वन इज द V2 फॉर्म। अगर इफ दैट इज द V2 फॉर्म इट मींस दैट इज सिंपल पास्ट, और सिंपल पास्ट में यूज क्या होता है कि निगेटिव बनाने के लिए डिड यूज होता है, तो क्या हो गया, डिड इट, और ये निगेटिव है तो ये किस में बन गया, पॉजिटिव में, तो डिड इट हो गया। दिस इज अ वेरी गुड। अब ध्यान देना ये भी आता है कि दिस आता है, ठीक, इसके बाद दैट आता है, दिस दैट आएगा, क्लियर, तो हम क्या करेंगे, इसको इट में कन्वर्ट कर देंगे, लेकिन अगर इसी की जगह दीज और दोज आ जाता है, दीज और दोज आ जाता है, तो हम क्या करेंगे, इसको दे में कन्वर्ट कर देंगे। क्लियर है, मतलब दिस इज अ वेरी गुड, इसका क्वेश्चन टैग क्या हो जाएगा, इज लगा है, पॉजिटिव है तो हो जाएगा इजंट इट, दिस इज अ वेरी गुड, ये बहुत अच्छा है तो इजंट इट, अगर होता दैट इज वेरी गुड तो क्या हो जाता, इजंट इट ना, अगर दीज आर वेरी गुड तो प्लूरल है तो क्या हो जाएगा, इजंट दे, और दोज आर वेरी गुड तो इजंट सॉरी अरंट, अरंट दे, यहां पर अरंट दे, दो दीज आर वेरी गुड तो क्या हो जाएगा, अरंट दे। तो और एक चीज और आप देखते होंगे कहीं कहीं समवन भी आता है, एवरीबॉडी भी आता है, तो ध्यान देना इन सब केसों की जगह इफ देयर इज अ यूजिंग द एवरीबॉडी, समबडी, समवन, एवरीवन,
तो इसकी जगह भी हम क्या करेंगे, दे यूज करते हैं। इसका क्वेश्चन टैग क्या बन जाएगा, जैसे ये तो हमेशा सिंगुलर करता है, लेकिन क्या आता है, प्लूरल को सिंगुलर करता है ना ये, तो हम क्या करेंगे, इसका दे लगा देंगे। इफ दैट इज द पॉजिटिव यू हैव टू चेंज इन द नेगेटिव। तो guys, I think you completely understand how to add the question tag of any types of or the statement or the sentence. If there is any problem, you may comment in a comment box. Thank you. That's all.